तुम खूबसूरत हो, ये बात खुद से 100 दफा कहो। चलते वक्त, रुकते वक्त, बैठते वक्त, उठते वक्त, सोते वक्त, जागते वक्त, खुद को आईने में देखते वक्त, मुस्कुराते वक्त, चिल्लाते वक्त, हर वक्त, दूसरों की आंखों में अपनी झलक देखते वक्त, बिना ये सोचे कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, खुद से बेखौफ कहो कि तुम खूबसूरत हो। Hello, Hi, how are you, Nab? I'm fine. How are you? How is it Yeah, I'm going doing. for you? Yeah, it's going pretty well. So earlier I used to go to Mumbai to take the interview, but looks like nowadays I'll have to stay home. It's sad. That is sad. But how about you? You are also coming online for Habitat Studio stages and all. Not Habitat. I think I've been going for Stage. Stage is another poetry platform. I'm doing some live sessions with fellow poets and all. But now live is also becoming like a danda because shows कैसे होते हैं 15 दिन में एक बार live is going like daily. So it's becoming थोड़ा सा because again that is the same patternization हो जाता है थोड़ा सा. So that is why when you guys approached me, I was like it's going to be something fun, because I was just Right. But yeah. yeah, so I think you know about our show. Mostly we talk about your school life and your college Yeah, life, like how you yeah, were there as a student. So we'll yeah. start from your school. Okay, thank you. My school life was like really fun for my grade 11th and 12th, and Mm-hmm. उससे पहले I was just hustling, trying to fit in. I've been talking in fact पिछले कुछ lives से ना हम बहुत बात कर रहे because इसमें everybody was asking that how did poetry begin for you. So basically, in 7th grade, I moved from a local school to a convent school. Okay. So I did not fit it into the convent. Like there were more proper people. I was very jhalli, you would say. मतलब एकदम झल्ला बच्चा. मतलब बाल कहीं जा रहे हैं. My clothes का iron खराब हो चुका है. I used to forget my hankies at home. So something like that. So I was very clumsy. So I could not fit in. And people in जैसे वो होता है ना, for me, in my own imagination, my school was like student of the year for me, and I was like some guy coming from like Okay. somewhere. So Yeah, somewhere, yeah, we all faces that. Yes. yeah. तो So कहाँ से किया था आपने अपनी एजुकेशन? कौन सी सिटी I'm से? like, I've done it from Sri Ganganagar. It's a town in राजस्थान. Rajasthan. Yeah. So I've done my education from Sacred Heart Convent School. It's got a name to itself. It's everywhere in India and everything. So yeah, it was pretty. And back then, इतना fluency नहीं होता है. You cannot like properly speak in English and everything. So those were pretty hard. But yeah, my high school was super fun. Super fun. ओके ओके, तो आप किस टाइप की स्टूडेंट थी? जिस तरीके से आप बता रही हैं ऐसा लग रहा है कि आप पढ़ने में बहुत तेज थी, फ्रंट बेंचर थी, टीचर्स की फेवरेट थी. हाँ, हाँ, मतलब मैं ये भी थी, पर मैं बहुत एट द सेम टाइम मैं बहुत शैतान भी थी. मतलब मैं डिसरिस्पेक्टफुल नहीं थी, बट या आई वाज शैतान एज वेल. मतलब करती ओके थी मैं ओके. पूरी. मैं अपने क्लास के लड़के बहुत पीटती थी. अरे बाप रे. मतलब मुझे भी लग रहा थोड़ा सा दूर रह के बैठना पड़ेगा. तुम तो सेफ हो गए ना, आज लाइव में हो तुम. हाँ, लाइफ. बट एटलीस्ट डरा तो सकते ही हो. हाँ. मेरे मेरे स्कूल फ्रेंड्स में मेरे फेसबुक टाइमलाइन पे हमेशा ऐसा ऐसा पोस्टेड रहता था, डॉन डॉन, क्योंकि मैं बहुत गुंडों की तरह ऐसा कॉलर वॉलर ऊपर करके, टाई नीचे करके, ऐसे एकदम डस्टर फेंक फेंक के मारती थी. तो अच्छा. तो मतलब आप एक डॉन टाइप लड़की से एक ऐसी लड़की कैसे बन गई जिसने तुम खूबसूरत हो लिखना स्टार्ट कर दिया? एक्सेप्टेंस. क्योंकि तब ऐसा होता है कहीं ना कहीं यू ट्राइंग टू फिट इन. सो आप क्या करते हो, आप बहुत सारे रूप धारण करते हो इन योर स्कूल जर्नी. योर स्कूल जर्नी इज लाइक आप ढूंढ रहे हो कि आप हो कौन एट द एंड ऑफ द डे. एंड इनफैक्ट आई वुड लाइक टू शेयर दिस लिटिल थिंग. उस टाइम पे बहुत हमें आदत पड़ जाती है लड़कियों को स्पेसिफिकली ऐसे बात करने की, कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, इन ऑर्डर टू फील दैट दैट स्ट्रांगनेस समवेयर. और हम हमेशा यू आर ट्राइंग टू बी मैन समवेयर. मतलब अगर आपकी मम्मी को आपको आपके लिए प्राउड भी करना है, तो वो कैसे बोलेंगे, शी इज लाइक माई सन, इफ शी इज प्राउड ऑफ यू. व्हाई?
why is that a thing? मतलब that is wrong. So somewhere in my journey around first year second year, तो जब वो realization हुआ कि ये पूरा साइकिल गलत है, ये स्टीरियोटाइपिंग गलत है कि अगर आप स्ट्रांग हो तो आप एक लड़के जैसे हो. सो यू कैन बी बोथ. आई एम स्टिल द सेम पर्सन. मैं भी बहुत शैतान हूँ, मैं भी बहुत जंगली हूँ, बट I somehow accepted myself. So acceptance is the key, I would say. राइट, ऑसम, आई थिंक दैट इज गुड टू नो। आप उसके बाद जब कॉलेज लाइफ आपकी कैसी रही, कहाँ से आपने कॉलेज किया, किस तरीके की स्टूडेंट थी वहां पे? मैंने कॉलेज दिल्ली से किया है, आईपी यूनिवर्सिटी से. देयर इज अ कॉलेज कॉल्ड बीपीआईटी, भगवान परशुराम. इट वाज मतलब इतनी फिल्मी कॉलेज लाइफ रही है मेरी. एज इन यू आल्सो हैव अ फिल्मी पाठशाला. सो मेरी कॉलेज लाइफ भी पूरी फिल्मी पाठशाला थी. और मेरा जब एडमिशन हुआ तो पहले तो मुझे लगा कि मैं कहाँ फंस गई, बिकॉज मैंने इमेजिन किया था बहुत बड़ा कैंपस होगा और मतलब ये वो एंड ऑल, बहुत बट छोटा ऐसा है वो। होता रियल लाइफ में मैं ऐसा होता नहीं. मैंने भी आईपी से ही पढ़ाई की है, हाँ. नॉर्दर्न इंडिया। ओह, आई एम मेरा सेंटर पड़ता था नॉर्दर्न इंडिया. गुड। बस सो तब आप लिखो कैसा आपका हाँ, रहा तो होगा, स्टोरीज तब बताइए। तब तब लगे तो शुरू होते ही खत्म हो गया, मतलब ये क्या हो गया. तो फिर उसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि हर कोई हर दूसरे इंसान को जानता रहता है, तो यू हैव मोर नंबर ऑफ फ्रेंड्स. एंड और मेरे कॉलेज में क्या था ना, अब शैतान मैं लड़ाई खोर तो वहां पे भी थी. और मतलब आई वाज मोर ऑफ जैसे नहीं होता स्कूल जैसे हाउस कैप्टन हो गया और ये करना है, तो हमेशा उस एंगल में भी फिट करना ही करना है. दैट आई हैव टू बी द लीडर इन द ग्रुप. मैं बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ, तो और मैं बहुत को करिकुलर हूँ. तो तब मैंने पोइट्री स्टार्ट किया. बेसिकली मुझे अपने होम टाउन तक तो पता, मैं लिखती थी, पर मुझे पता नहीं था कि ऐसा इसको आप इस लेवल तक लेकर जा सकते हो, यू कैन पार्टिसिपेट इनटू कॉम्पिटिशंस एंड एवरीथिंग. तो जब मेरे कॉलेज का पहला फेस्ट हुआ, तो पहले तो मैं जाते ही मिस फ्रेशर्स बन गई ओह, अनऑफिशियल में. अरे वाह। हाँ, तो फिर उसके बाद ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, बट अगेन उसके बाद आई गॉट इनटू पोइट्री. तो आई वाज हाइप्ड as a student as well. I had a hype between teachers, hype amongst the, मतलब ऐसा नहीं था, although मैं ये भी नहीं था कि I was like a desired person. No, थी मैं वैसे ही थोड़ा अपने जोन में, बट बहुत फन था क्योंकि मैंने बहुत ऑर्गेनाइज करवाए फेस्ट, बहुत ट्रिप्स मारे. देयर वाज अ टाइम आई वाज इन सेकंड ईयर, आई वेंट टू मलेशिया with my best friends through ISET. So it was ओके, 6 of us in second year sharing a room, bunk beds है वहाँ पे, और हम लोग घूम रहे हैं 1 महीना, NGO में काम कर रहे हैं. So that is why college life is like super fun, super fun. तो फिर आपने जो आईपीयू का फेस्ट होता है द्वारिका में, वहां पे भी कुछ पार्टिसिपेट किया था? मैं कांस्टेंट विनर रही हूँ 2 साल, जब मैंने जाना शुरू किया वहाँ पे हिंदी पोइट्री में. ओके, ओके। और ये बताइए कि चलिए, ये तो हम जानते हैं कि आप स्टेज पे जा रही हैं, लेकिन पहली बार नायाब कौन से, मतलब कब वो थी, कौन सी क्लास में थी जब पहली बार वो स्टेज पे चढ़ी, या उनको पता चला कि स्टेज फियर उनको नहीं है, वो बोल सकती हैं? ओ, इसका क्रेडिट तो मेरी माता श्री को जाता है, क्योंकि मैं 2 साल की थी जब मेरी मम्मी मुझे डांस क्लास लेकर जाना शुरू हो गई थी. और अरे बाप रे। तो जब मैं बड़ी हुई तो ये मैं स्टेज पे ही बड़ी हुई हूँ. मतलब मेरी 3 साल की 4 साल की वीडियोस हैं जब मैं स्कूल एनुअल फंक्शन में सोलो परफॉर्मेंस दे रही हूँ, और स्टेज पे तो मैं तब से ही हूँ. टॉकिंग अबाउट पोइट्री स्टेज, वो थोड़ा वियर्ड है. जब निर्भया केस हुआ था, तो तब हर जगह कैंडल मार्चेस हो रही थी और मैं लिखती थी बहुत, बट मेरे होम टाउन में ऐसा कोई स्टेज नहीं था जहाँ पे आप अपनी पोइट्री सुना सको और नॉल. तो तब मैंने एक पोएम लिखा था, और मैं इतनी डिसहार्टेंड थी कि सब लोग कैंडल मार्च पे जा रहे हैं, और जहाँ पे वो एक स्टैचू के पास वो सब कैंडल्स रखना था, तो वहां पे एक स्पीकर और माइक वगैरह था. मैं लिटरली, वो वहां पे एक रिक्शा खड़ा था, उसके ऊपर चढ़ गई एंड आई परफॉर्म दैट पोइट्री. अरे वाह। तो एंड आई सॉ द पीपल, हाउ पोइट्री मूव्स पीपल. तो पोइट्री परफॉर्मेंस पहला थोड़ा अच्छा था. वैसे तो स्टेज तो मुझे खुद को ही नहीं पता कि मैं कब से स्टेज पे हूँ. क्योंकि मुझे पता है कि जब से मैं होश में आई हूँ तब से स्टेज पे हूँ. ओके, मतलब बाकी की सारी चीजें आपने सीखी हैं, पोएट्री सीखी है, लिखना सीखा है, लेकिन ये बॉर्न टैलेंट आपका कि स्टेज पे स्टेज फियर नहीं, ऑडियंस फियर नहीं है। बच्चे कोई चढ़ा दिया मम्मी ने स्टेज पे तो ऐसे नहीं, फियर है, फियर है. ऐसा नहीं कि फियर नहीं है, पर स्टेज पे चढ़ने के आधे मिनट बाद चला जाता है. ओके, ओके।
वो सही है। ऐसा है थोड़ा, वो स्टेज को आपका घर बनने में वो टाइम लगता है, क्योंकि हर बार स्टेज नया होता है। राइट। तो आप जय श्री गंगानगर से न्यू दिल्ली कब शिफ्ट हुई और कैसा लगा आप एक छोटे टाउन से जब बड़े टाउन में आई? पहले 8-9 महीने तो मेरी वाट लग गई थी। तो ओके। मतलब लोगों को लगता था कि मैं राजस्थान से आई हूँ, तो मैं सीधा ऊंट ऊंट पे बैठ के डेजर्ट से आई हूँ, अच्छा। और मेरे यहाँ पे केबल नहीं आती, मैं गांव की लड़की हूँ तो मुझे इंग्लिश नहीं आती होगी, और ओके। मतलब बहुत बुली भी हुई मैं कॉलेज में। और आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे एक बार दाल में नींबू डालना था तो लोगों ने मुझे उस पर भी बुली कर दिया। मतलब ये तो स्टैंडर्ड है, ये थोड़ी है कि दिल्ली में ये होता नहीं है। ओके। तो आप तो मतलब सीधे इंजीनियरिंग करने की आई थी आफ्टर 12? जी, जी। ओके। मैं परफेक्ट है। डायरेक्ट अब बीपीआईटी में आई थी, तो वो शायद ऐसा होता है ना कि कॉलेज में लोग ढूंढ ही रहे होते हैं कि किसको बुली करें, तो परफेक्ट शायद परफेक्ट। कुछ है, बट ठीक है, फाइटर, आई एम अ फाइटर। अच्छा, आपकी एक पोएट्री है तुम खूबसूरत हो जो बहुत फेमस है, ऑलमोस्ट लाइक करोड़ 10 मिलियन से ज्यादा व्यू है, 10 मिलियन प्लस व्यू है, और बहुत कम टाइम में ऐसा हुआ। तो आपको कैसा लगा कि आप मतलब क्या होता है कि जब इंसान कोई लिखता है या फिर सुनाता है तो उसको नहीं पता होता कि ये कितने लोगों तक पहुंचने वाला है, लेकिन आप जब उसका अप्रोच देखते हो, जब ऑडियंस रिएक्शन देखते हो, तो कैसा लगता है आपको और क्या उसका बैकग्राउंड था, कुछ बताइए। तुम खूबसूरत हो, मैंने आपको बोला ना कि मैं स्कूल में, मतलब मैं बहुत क्लमजी चाइल्ड थी, और बुलिंग मेरी लाइफ का कहीं ना कहीं एक पार्ट रहा है। मतलब वो उतना एक्सट्रीम नहीं था कि मैं बोलूं कि नहीं मुझे सुसाइडल थॉट्स आए, नहीं, वो इतना रेगुलर था कि वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में बैठ गया। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि मुझे मुझे कहीं, क्योंकि मैं बहुत हैरी थी, स्कूल में भी बहुत हैरी चाइल्ड थी, तो जब आप स्कूल में एक लड़की होती है तो यू स्टार्ट गेटिंग योर मस्टेच लिटिल बिट, तो मस्टैच आती है तो बॉयज आपको मर्द मर्द बोलना शुरू कर देते हैं, विच इज बैड, यू नो, इट इज रॉन्ग, यू कैन नॉट, मतलब जस्ट बिकॉज द होल वर्ल्ड डिसाइडेड टू कट इट ऑफ डज नॉट मीन कि वो आएगी ही नहीं, तो इट्स वेरी वियर्ड। तो ये सब बातें आप अगर आप फन में ले लो तो हंसे, बट सबकॉन्शियस में हर लड़की को कहीं ना कहीं ये गलत लगती है। तो एंड लोगों को बहुत मजा आता है क्रिटिसाइज करने में, कहीं ना कहीं बहुत उनको उनको बहुत फन रहता है, कॉलेज में भी हुआ है, हर जगह। तो rather than changing myself, मुझे एक थॉट था कि नहीं, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस जब मेरे अंदर आया था ना, तो वो ऐसे ही आया था कि नहीं, नो मैटर व्हाट आई एम फाइन, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम गुड। सो वो लिखा भी इसीलिए गया था कि whosoever does not feel the same way, I want them to, I personally want them to. So जब वो रिलीज हुआ, उससे पहले तो 100K तक नहीं था, मतलब 1 लाख व्यूज भी नहीं थे मेरे पास किसी भी वीडियो पे, कहीं पे भी। तो जब वो रिलीज हुआ विद इन 2 days इट गॉट टू 1 मिलियन, फिर अगले दिन 2 मिलियन, अगले दिन 3 मिलियन, तो वो बहुत सही स्पीड से, बहुत अच्छे से। इनफैक्ट आज भी उसको सेम चैनल ने रीपोस्ट किया था, तो अगेन सेम स्पीड से वो निकलता है। और उस सबसे ब्यूटीफुल पार्ट उसका ये है कि उसके जो कमेंट्स रहते हैं ना, वो रहते हैं कि लोग एक दूसरे को टैग कर रहे हैं, कोई मुझे कुछ नहीं कह रहा है। कोई लड़का है तो वो शायद अपनी गर्लफ्रेंड को टैग कर रहा है, कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को टैग कर रहा है, मेनली जो विमेन है वो अपनी फ्रेंड्स को टैग कर रही हैं। बहुत कम ऐसे कमेंट्स हैं जिनमें लोग मुझे कुछ कह रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा है कि मैं कि कोई पर्पस रिजॉल्व कर रही हूँ, बस दैट्स इट। तो ऑडियंस से वो, आपका कनेक्ट है। हाँ, वो एक्सट्रीम हैप्पीनेस ही वही है और कुछ नहीं है। ऑल्सो एक ऐसा, एक छोटी सी बच्ची है, मैं शेयर करूंगी वो अब पिक्चर, या फिर मैंने अपने प्रोफाइल पे डाला भी हुआ है। एक बहुत छोटी बच्ची है, उसने टीवी पे मेरा वीडियो लगा रखा है, शायद 4 या 5 साल की होगी वो। एंड देखा शी है मैंने ये है ना, स्टेज पे। एंड शी सेंड मी अ पिक्चर पॉइंटिंग आउट राइट। फ्रॉम अ स्मॉल किड to women of 40s and 50s, and few people from Bollywood shared it. Sharif Hashmi ji हैं, who is in Family Man with Manoj Bajpayee, उन्होंने शेयर किया और लिखा कि जाइए आप आज जाके किसी से कहिए कि वो खूबसूरत हैं। So if some people from there are liking it, that is my happiness, that is my earning, कि कहीं ना कहीं कोई भी घर पे बैठा अगर 1 करोड़ लोग एक खुद को खूबसूरत बोल पाए तो इससे बढ़िया क्या होगा। राइट राइट। अच्छा, मुझे नहीं पता आपको कितनी पंक्तियां उसकी याद होंगी, लेकिन अगर कुछ सुना सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे वो पूरी बाय हार्ट याद है, मैंने इतनी अरे बार सुना है। पक्का तो डन। ऑडियंस सुनना चाहती है, एक बार सुना दीजिए। ठीक है। तुम खूबसूरत हो, ये बात खुद से 100 दफा कहो। चलते वक्त, रुकते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, सोते वक्त, जागते वक्त, हर वक्त।
खुद को आईने में देखते वक्त, मुस्कुराते वक्त, चिल्लाते वक्त, दूसरों की आंखों में अपनी झलक देखते वक्त, बिना ये सोचे कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, खुद से बेखौफ कहो कि तुम खूबसूरत हो। और जब ये बात झूठ लगे, और जब ये बात झूठ लगे, तब भी कहो कि कोई दिल लगी, कोई जिम्मेदारी, अवसाद या कोई बीमारी रहा होगा कारण इस रूखे बदन का। और इससे खूबसूरत क्या ही होगा, और इससे खूबसूरत क्या ही होगा कि रूप ने खुद से ऊपर ध्यान रखा रूह का। तो ये सच एक दफा खुद से फिर कहो कि तुम खूबसूरत हो। तब तक कहो जब तक ये आवाज तुम्हारी जुबान से निकल तुम्हारे कानों तक पहुंचने से पहले तुम्हारे गालों को ये बताकर उठा न दे, तुम्हारी आंखों के गड्ढों में बैठ न जाए, तुम्हारे होठों की करवट बदल न दे, तुम्हारे माथे की सिलवटें हटा न जाए, तुम्हारे बदन के कन कन को बता न दे, तुम्हारी रूह में जब तक ये बात बस न जाए तब तक कहो कि तुम खूबसूरत हो। और जब भी कोई इस बात को झुटलाना चाहे, रंग रूप के झांसे में तुम्हें फंसाना चाहे, शरीर के आड़े टेढ़े आकार तुम्हें समझाना चाहे, अरे तुम दही बेसन क्यों नहीं लगाती, काली हो गई हो, अपना शरीर तो देखो, सुबह उठकर टहलने नहीं जाती, ये पतली कमर, 20 की छाती, 5 फुट का 6 का डोला, तू सच बता तुझे मर्द कौन बोला। ऐसी हजारों बातें, ऐसी हजारों लाखों बातों से तुम्हें हर रोज है नीचा दिखाया जाता। मैं जानती हूँ ऐसा शारीरिक मजाक हमारा हर रोज है उड़ाया जाता। तो अगली दफा जब नीचा तुम्हें कोई दिखाना चाहे, तुम्हें तुम्हारी नजरों में गिराना चाहे, तो उनके करीब जाना, उनके करीब जाना, हाथ थामना या पीठ थपथपाना और उनसे कहना मेरी जान हम नहीं जानते, मेरी जान हम नहीं जानते कि तुमसे ये किसी ने कहा है या नहीं, मगर तुम खूबसूरत हो। मेरी जान मैं ये नहीं जानती कि तुम सभी से किसी ने ये कहा है या नहीं, मगर तुम खूबसूरत हो। ये बात खुद से 100 दफा कहो, हर वक्त कहो, कहते रहो कि तुम खूबसूरत हो। थैंक यू सो मच। कमेंट्स में भी तालियों की आवाजें आ रही है, कमेंट्स में भी तालियां बजा रहे हैं। थैंक यू।